Welcome students in the first lecture of set theory. Myself Rajesh Kumar Jha. I am BTech engineer and I have 10 years of experience of teaching those students who are in class 11 and 12 and they are also preparing for JEE entrance examinations. So आज के क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लास 11th का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी एंड द सेट थ्योरी वाज गिवन बाय अ मैथमेटिशियन, अ जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर. Actually he was studying about trigonometric series and then he invented, or you can say that he thought about this set theory. Now in every field of mathematics we use this set theory. In actual, if you study probability, if you study sequence and series, if we study binomial theorem, if we study, you can say, trigonometry, in various field of mathematics, we use set theory, and set theory become the integral part of mathematics. So it is a very important topic. Actually, after the set theory, we will study relation and function chapter that is also very much connected to the set theory. So you can say that each and every part of mathematics is connected to this chapter. So first of all, I am going to define what is sets. Okay. So the definition of set is a well-defined collection of objects, or it can also be said as elements. So first of all, the definition of set theory is that set is a well-defined collection of objects, and in the case of set theory we say objects are also as elements. Okay, so the main question arises when you see this definition. Then main question arises that what is the meaning of well-defined. So let me explain. Well-defined collection of objects or elements means that we can easily determine that an object is in the set or not. That means well defined का मतलब होता है, well defined का ये मतलब होता है कि यदि मैं लिखता हूं कोई भी सेट और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली हम बहुत इजीली लिख सकते हो या उसमें बता सकते हो कि कौन से एलिमेंट होंगे और कौन से एलिमेंट नहीं होंगे. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो इसको एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं. सो द एग्जाम्पल इज, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels of English alphabets. So when you talk about the collection of all vowels of English alphabet, so we know this fact that there are 26 alphabets A to Z, but we can easily say that there are only 5 vowels, that is A, E, I, O and U. Okay, so when we talk about this collection of vowels of English alphabet, then we can easily
say that A, E, I, O and U is in this set. Okay, we can easily say that. And we can also say that B is not in this set, C is not in the set, D is not in the set, because that are not vowels. So when we say about all vowels of English alphabet, then this word all vowels of English alphabet is a well defined collection. That means well defined collection of object means that we can easily determine that an object is in that collection or not. Okay, so now if you read this definition, then we can easily interpret the meaning of this definition, that the well defined means that we can easily interpret that which element is going to be in that collection or which is not going to be in that collection. Okay, so just like we will also take an example in which we can say that that is not a set. So the second example is, write this definition, and now I am taking another example. Suppose the second example is collection of eleven best cricketers. 11 best cricketers of world. Actually, this is a set. We can easily write that this is a set, because this is a well defined collection. But is this collection a well defined? So think about this, why it is not well defined. Because if I ask you that collection of 11 best cricketers of the world, and can you count them, then it is a person to person perspective. Different person has different best cricketers. Just I have Sachin, but another person does not like Sachin. So such type of definition can become, and so we can say that this collection of things is not well defined. That means we cannot easily interpret that which element is in this set and which will be not. But here we can easily say that B is not here, A is here. But in this collection, we cannot easily determine that which cricketer we can take in this 11 best. Okay, so this is not well defined collection. So it is not a set. Okay, clear? सही है. So that is the definition of sets. Now discuss about how we can represent sets. सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ए सेट. फर्स्ट इज कॉल्ड, पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड. क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड. और यू कैन ऑल्सो से इट एज टैबुलर मेथड. इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड टैबुलर मेथड. ओके, सो इसमें हम एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा के साथ लिखते हैं. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. इसको आप याद रख सकते हैं एज ए डेफिनेशन, दैट इन दिस मेथड we list all elements of the set in curly braces. This is called curly braces. Curly braces separated by commas. So in the roster method,
all the element is listed in curly braces separated by commas. So example is the set of all even natural numbers. सो सेट को जो है वो हम डिनोट करते हैं ना कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से. ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है ना. सो वी कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एक्सेट्रा. ओके. सो किसी भी सेट को जब लिखना होता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं? ए कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना. और जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सेट is denoted by small letters of English alphabet, that is small a, small b, small c, x, y, z etc. ओके. कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक, इस पे कोई दिक्कत नहीं है. तो ये दो चीजें जो है वो हमेशा हम ध्यान रखेंगे. सो द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इसको यदि मैं ए सेट डिनोट करता हूं, द सेट ए ऑफ, ऐसे लिख लेता हूं, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. सो दिस सेट ए कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर इज अ नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2. 2 से डिविजिबल जो भी नंबर होगा, 1 के बाद वाला नंबर जो नेचुरल भी है, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर कह रहे हैं हम लोग. तो 1 या 1 से बड़ा कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा उसको हम इवन नेचुरल नंबर कहते हैं. तो दैट नंबर आर 2, 4, 6, 8 और बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स है. तो क्या करते हैं हम इस तरीके के सेट में डॉट 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 दे देते हैं, ठीक, और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं, ठीक. सो दिस सेट is the set of all even natural number and it is a well defined collection because we can easily say that 2 इस सेट में होगा और 3 इस सेट में नहीं होगा. तो इस बात को लिखने के लिए भी नोटेशन है. तो वो कैसे यूज करते हैं देखिए यहाँ पे. जैसे मैं चाहता हूं कि मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि 2 ए सेट का एलिमेंट है, तो इसका नोटेशन कैसे है? 2 बिलोंग्स टू सेट ए. इसको हम रीड करेंगे कैसे? 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या हम इसको कहते हैं, जैसे अलग अलग चीजें लिखते हैं हम लोग, 2 बिलोंग्स टू सेट ए. इसको ऐसे रीड करेंगे और इसका मतलब होता है 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. एंड अनदर वे वी कैन ऑल्सो राइट दैट 2 इज a member of set A. 2 is a member of set A. So these are the different ways of representing 2 belongs to A. Okay. And suppose we want to write the thing that the number 3 is not in this set. So we can say that 3 does not belongs to set A. Okay. Well, how will you read it? 3 does not belong to set A. Okay. You can write like this. So this is the way of representing that a number is in the set or not in a set. Okay. तो इस तरीके से ये नोटेशन है, इसको हम याद रखेंगे. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड रोस्टर मेथड. इन द ड्यू कोर्स आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन जब करेंगे तो बार बार हम इस तरीके के एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम रोस्टर मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को. तो आप सीख जाओगे. अभी मैं दूसरा मेथड जो दूसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड. सेकेंड मेथड इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड, और यू कैन से दैट इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है. प्रॉपर्टी मेथड. ओके.
So now I am just explaining it. So in this method, we write the characteristic property of elements in that set. Okay. Just in the previous example, if we want to write this set, suppose A is a set that is in the roster form, we have written 2, 4, 6, 8 dot dot dot. That was the set of or collection of all even natural number. Suppose if I want to write the same set in the set builder method, so how will you write this set A in set builder form? Set builder form or set builder method. This set A can be written as A set को ही कैसे लिखेंगे? X, where X is a member of set A, and we can write it as X such that this symbol is colon is used for, and we read it as such that X such that X is even natural number. Okay, and here we are writing the property of that element. X is an element of set A where X is even natural number. So we are just writing the same set in the another method that is called set builder method, or you can say that property method, because in this method we are writing the properties of these numbers. Okay, so this type of representation is called roster method. This is called roster method, and this type of notation is called set builder form or set builder method. Okay, now we will also study about some notation by which we can denote the numbers. Okay, so just there are some notation of sets. तो सबसे पहले आप समझिए कि सेट थ्योरी में इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे. एक्चुअली दिस इज यू कैन से ये तरीका है या ये स्पेशल नोटेशन है, ये सिंबल है जो कि हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. और जैसा कि आप सब जानते हो कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, दिस आर ऑल काउंटिंग नंबर्स. तो जब भी हमें, क्योंकि इसके जब सेम ऑर्डर फॉलो करता हो तो हम कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, उसके बाद डॉट डॉट लिखते हुए आगे ऐसे लिख देते हैं. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, जेड से. ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स याद रखेंगे इनको, जैसे कि हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो देखते ही हमें समझ में आ जाए. सपोज x बिलोंग्स टू z ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब x क्या है, इंटीजर्स है. सो सेट ऑफ इंटीजर्स. और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, तो डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं. क्लियर, इन सबको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं. सिमिलरली रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए जो है वो क्यू को यूज करते हैं हम लोग. सेट ऑफ ऑल
रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो अलग चीजें हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप समझिए कि q जो है दैट इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं इसको। और जहां तक बात है तो q कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, QC या तो कैपिटल T, इन जनरल हम ऐसे या तो इस तरीके से लिखते हैं q कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, बट ये सिंबल है या तो T, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। क्लियर? द नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q is called irrational number, just like √2, √3, पाई, एक्सपोनेंशियल में e की वैल्यू, ये सब इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे तो वहां पे मैं बताता जाऊंगा कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रियल नंबर, है ना। r लिखते हैं और एक थोड़ा सा डबल लाइन दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, r से, कैपिटल R से, ठीक। इस सेट को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और जहां तक रियल नंबर्स की बात है तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर है वो सारे के सारे रियल हैं। तो रेशनल और इरेशनल वो सारे नंबर जब एक साथ हम सेट में बात करेंगे तो वो रियल नंबर है, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और आगे देखते हैं और क्या क्या सिंबल हमें जानने की जरूरत है। R पॉजिटिव ऐसे लिख रहे हैं, R पॉजिटिव, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब इसका मतलब होता है कि जीरो से बड़े जितने भी नंबर हैं, 0.1 हो गया, या मतलब जीरो से बड़ा कोई भी नंबर जो है उसको हम R प्लस से डिनोट करेंगे। Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जैसे ये जब हम बात कर रहे होंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो से बड़ा जो भी इंटीजर होगा उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है ना। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक, क्योंकि यही तो सेट है जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। Z माइनस की बात करेंगे तो निगेटिव इंटीजर, मतलब -3, -2, -1, ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स की जब हम बात करेंगे, इसको सिंबल तो हम इस तरीके से नहीं दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स की, तो ये 0, 1, 2, 3 और ये सब सारे नंबर्स जो हैं वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नॉन निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव वाले को छोड़ के बाकी। तो 0 जो है वो एक अनसाइंड नंबर है, उसका कोई साइन नहीं होता, ना वो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो नॉन निगेटिव वाले जो नंबर है उसमें 0 इंक्लूड होता है, और इसी को हम, यदि आपको पता हो तो इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना, होल नंबर। तो इसको W से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, W। इस तरीके से डबल लाइन जो है ना एक ले लिया जाता है। इन जनरल तो वैसे आप W सिंपल भी लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है ना, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट, सारे के सारे जो नंबर है। So these are some notations. The next thing we discuss about the set theory is that is types of sets. So what are the different types of sets? The first is called
empty set, and this is also called as null set or void set. These are the different names of an empty set. So just as जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, empty का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. सो a set which contain no elements, a set which contain no elements is called empty set. क्लियर? तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन एम्प्टी सेट is denoted by a symbol phi or just as a curly braces with no element. Okay, so empty set को डिनोट करने के लिए ये जो सिंबल हैं उनको हम यूज करते हैं. ठीक, तो यहां पे एक एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेते हैं कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं. सो द एग्जांपल इज, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैंने एक सेट लिखा A such that A is equal to X such that X is a natural number and X lies between 1 to 2. इसका मतलब होता है X 1 से बड़ा है, that is 1 is less than X means X is greater than 1, but X is less than 2. that means X 1 और 2 के बीच का नंबर होना चाहिए. ठीक, 1 और 2 के बीच का नंबर होना चाहिए X. तो यदि मैं पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं. ठीक है ना, कितने रियल नंबर्स हैं. यदि मैं पूछूं 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो आप कह सकते हो 1.01, कोई कह सकता है 1.001, कोई कह सकता है 1.0001, है ना. सो दैट डिस्कशन इज अनएंडिंग एंड वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं. तो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं. तो x क्या है, 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. और क्या है x, एक नेचुरल नंबर है. तो आपको पता होगा कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है. ठीक है, 1 खुद नेचुरल नंबर है, उसके बाद सीधे 2 है. क्या 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई करता है क्या? नहीं करता है. तो दैट मीन्स दिस सेट हैविंग नॉट अ सिंगल एलिमेंट. यदि मैं पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी मेथड है, दैट इज सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है. इसको यदि मैं रोस्टर मेथड में लिखना चाहता हूं, तो रोस्टर मेथड में तो हम क्या लिखते हैं, सिंपली सेट के अंदर वो एलिमेंट लिखते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो. तो इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स ये जो सेट ए है वो क्या है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. सो दैट इज एम्प्टी सेट. ओके, सो और यू कैन इजिली राइट इट एज 5. ये सेट ए क्या है, 5 के ही बराबर है. एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं. A or B, you can say that B is equal to X such that X is a prime number. X is a prime number and X lies between 7 and 11. Okay, B is the set that X such that X is a prime number and X lies between 7 and 11. तो 7 और 11 के बीच में क्या मतलब, 7 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए. मतलब 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, यदि हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हो तो 8, 9, 10 ये 3 नंबर आते हैं जिनमें हम प्राइम चेक करते हैं. तो 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है ना.
सो 7 और 11 के बीच में एक भी प्राइम नंबर हम देख रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेट है वो क्या है, आपका एम्प्टी सेट है, 5, जिसको हम लिख सकते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। द सेकेंड टाइप इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, फाइनाइट सेट या तो हम इनफाइनाइट सेट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें जो काउंटेबल हो, है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। सो वी कैन से दैट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is countable, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, then set is called finite set. Okay, as for example, suppose A is the set of all vowels of English alphabets A, E, I, O, U. So this set is a finite set, because if I say that what is the number of element of this set, number of element इस set का कितना है, तो आप बता सकते हो काउंट करके 1 2 3 4 5. So that is finite set. तो जब हम नंबर की बात करते हैं तो इसको कैसे डिनोट करते हैं हम सेट थ्योरी में, ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको डिनोट करने का एक तरीका हम यूज करते हैं जिसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए, है ना, या इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, है ना। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए का मतलब होता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये बताना। यदि मैं पूछूं कि इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है तो 5 के बराबर है, ठीक है ना, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए से, ठीक। सो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज हियर 5। तो यदि हम काउंटेबल नंबर बता सकते हैं किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है तो वो सेट क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक। और यदि नहीं होता है, ऐसा काउंटेबल नहीं होता है, दैट मीन्स अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज काउंटेबल देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, otherwise infinite set. That means if the number of element in that set is not countable then that set is called infinite set. As for example, the set of natural number is infinite set because the set of natural number is 1 2 3 and dot dot dot. That means there are so many elements here, pattern wise 1 2 3 4 5 6 and so on. So can you count the number of element in this set? So the answer is no. We can having so on to infinity. That means this number of element in this set is not finite. So set of natural number is infinite set. Set of natural number is infinite set. Clear? सो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, यदि हम काउंट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स, पर्टिकुलर सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको, तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और यदि काउंटेबल नहीं है तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैं बताता हूं, द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, द सेट ऑफ ऑल human in this planet at a particular time. So the answer is, if I ask you, is this set a finite set or infinite set? So the answer is finite set. This set is a finite set. So many of you can think that how can we count the number of elements in this set? Okay,
how can we count the set of all humans on a planet? So we don't have to count actually, but if is there any method, or you can say that if there any scientific tool by which we can suppose counting the total number of persons on the planet at a particular time, okay, then it must be countable, it must be some finite number. नेक्स्ट देखते हैं सिंगलटन सेट किसको कहते हैं. तो सिंगल का मतलब क्या होता है, वन. सो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है ना. सो सेट which has only one element is called singleton set. एक ही एलिमेंट हो, दैट मीन्स यदि कोई सेट है A जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, A is the set of even prime numbers. तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो प्राइम इवन नंबर हो, दैट इज ओनली 2. सो दिस इज सिंगलटन सेट. सो हियर ए इज ए सिंगलटन सेट. एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट किसको कहते हैं. इक्वल सेट्स. तो जब भी हम इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो दो सेट के अंदर बात करेंगे. टू सेट्स ए एंड बी. सपोज लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. आर सेड टू बी इक्वल if set B have exactly same element as set A. दैट मीन्स A और B सेट को हम इक्वल सेट कब कहते हैं, जब A सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट सेट B में भी हो. So set B have exactly same element as set. Then two sets A and B are said to be equal. As for example के लिए देखते हैं. जैसे मान लीजिए A सेट है 1, 2, 3, ठीक, और दूसरा सेट है B दैट इज 2, 3, 1. तो ए सेट में जितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं. बी सेट में भी 3 ही एलिमेंट है. पहली बात तो दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए. दूसरा बात जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि ए सेट में एग्जैक्टली वही एलिमेंट होने चाहिए जो बी सेट में है, या बी सेट में वही एलिमेंट होने चाहिए जो ए सेट में है. तो 1 ए में भी है, बी में भी है, 2 ए में भी है, बी में भी है, 3 ए में भी है, बी में भी है ना. तो order of the element in the set does not matter. In the set theory, order of element. So note this point. That is, order of elements in set does not matter. उससे कोई मतलब नहीं होता. दैट मीन्स ए सेट और बी सेट जो है वहां बराबर है, क्योंकि ए सेट में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही सेम एलिमेंट बी सेट के अंदर भी है. तो ए सेट क्या है, बी सेट के बराबर कहेंगे यहाँ. तो ये तो हो गया हमारा इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट. तो आगे जहां तक सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट की बात है, तो सेट थ्योरी में जहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ x² + x - 2 = 0 इन रास्टर फॉर्म.
मतलब इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा कि हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपको पता होगा कि जैसे यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1 और यहाँ -2, तो 1 इंटू -2 होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus x. 2x minus x is 1x. That is 2x minus x is x लिख सकते हैं। और साथ ही साथ 2 इंटू -1 करने से -2 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और ये x -1 इक्वल टू 0। तो ये या तो 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से -2 और 1। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो है x की वैल्यू -2 या तो 1 हो सकती है, ठीक। इसको बोला है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो सपोज लेट A is the set of solution of x square plus x minus 2 equal to 0, then A सेट को में हम कैसे लिखेंगे -2, 1। रोस्टर फॉर्म में हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए लिख देते हैं। तो समझ गए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें ये दिया हुआ है, राइट द सेट दैट इज x such that x is a positive integer and x squared less than 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो फॉर्मेट जिसमें लिखा हुआ है ये सेट, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड या तो सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि x क्या है। तो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो होता है 1 2 3 4, ये सब जो है ना, ये सबको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर के सेट को ही पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहा जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका होल स्क्वायर करने से 40 से कम नंबर आएगा। समझ रहे हैं बात। तो सॉल्यूशन करते हैं। सो एज यू नो एक्स स्क्वायर लेस देन 40 के लिए x की वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर में से ढूंढनी है। तो पॉजिटिव इंटीजर में से यदि 1 हम ले लें तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इज लेस देन 40। 3 भी जो है वो आपका क्या है यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 एंड दैट इज लेस देन 40। 4 भी आएगा, 5 भी आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 दैट इज 6 का स्क्वायर 36 और 36 इज लेस देन 40। 7 आएगा क्या, यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है एंड दैट इज नॉट लेस देन 40। सो वी हैव टू चेक 1 by 1 इन दिस केस। चेक करके भी मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि ये जो 6 पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6, उनका होल स्क्वायर क्या होगा, 40 से कम होगा। और इसीलिए ये जो सेट है दैट इज सपोज लेट A इज द सेट दैट इज x such that x is a positive integer z plus and x square is less than 40। ये जो दे रखा है पूरा लिख लीजिए इसको, है ना, पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिएगा। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे फिर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 एलिमेंट हैं। तो ये रोस्टर मेथड हो गया। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म और रोस्टर मेथड ऑफ राइटिंग दिस set। Question, next question, write the set A is equal to 1, 4, 9, 16, 25 and dot to in a set builder form।
तो इसमें आप यदि इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे तो 1 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 9 है। सो 1 इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने से कितना आता है 4। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। तो ये सब क्या है स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर है। तो इसको यदि हम सॉल्यूशन लिखें, मतलब हम सेट बिल्डर फॉर्म में यदि इसको लिखना चाहते हैं तो ए सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज x such that x is a square of natural number। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना आप इसको। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो क्या है x, क्या है x यदि ए सेट का एलिमेंट है, x ए सेट में कब होगा जब x नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। या इसी बात को दूसरे तरीके से भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x such that x इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखने का दूसरा तरीका, x such that x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। दूसरा इस तरीके से भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। ये फिर से सेट बिल्डर में लिखने वाला ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सेट गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको मुझे किस में लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। तो जब भी आपको सेट बिल्डर मेथड में किसी भी रोस्टर मेथड में दे रखा है और आपको सेट बिल्डर में यदि लिखने के लिए दिया जाए तो आपको सबसे पहले तो उस सेट में ऐसे एलिमेंट का थोड़ा पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न मतलब कि किस तरीके का जो है वो उसमें एक आपको पैटर्न दिख रहा है। तो पैटर्न कैसा दिख रहा है मुझे, यहाँ 1 है और नीचे क्या है 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो नीचे क्या है 4 है। तो आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में है। मतलब 2/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2/2 + 1। सिमिलरली 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखिए 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 + 1। तो एक बात क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे आप लिख रहे हैं तो ऊपर वाला जो नंबर है वो तो 1 2 3 4 5 6 तक गया है, ठीक, और नीचे में उसी से एक ज्यादा है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हुए थोड़ा सा यदि हम दिमाग लगाएं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू n/n+1। मान लीजिए n जो है वो कैसा, इसमें कैसे लिख रहे हैं हम लोग 2/2 + 1 ना। तो फिर अगला जो 3 है उसमें हम कैसे लिखेंगे 3/3 + 1। तो ये n जो है ना वो चेंज हो रहा है, ये +1 तो सब में ही नीचे आएगा ना। तो n/n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, पहली बात तो। लेकिन सारे नेचुरल नंबर के लिए होता तब तो ये इनफाइनाइट तक होता, यहाँ तो कहाँ तक 6/7 तक ही है। तो इसलिए मैं लिखूंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। n क्या है 6 या तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। सो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग दिस रोस्टर मेथड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। a is equal to x such that x equal to n/n+1 where n is a natural number। n क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होता तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यदि मैं यहीं पे इसको ना लिखूं तो इसका मतलब 1/2 2/3 से लेके इस तरीके से इनफाइनाइट तक। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे इस सेट में 6/7 पे ये खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, लास्टली 6 है। तो n लेस देन और इक्वल टू 6 वाला जो नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर में यही नंबर्स जो है वो 6 या तो 6 से कम है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट थ्योरी है इसके क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से सबसे पहले करेंगे, फिर मैं आपको कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस दूंगा तो आपको वहां से भी क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ आपके पास मॉड्यूल्स अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में, या कुछ बच्चों के पास होंगे भी। तो अभी तो आप पहले एनसीईआरटी यदि आपके पास है बुक तो वहां से आप क्वेश्चंस करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं
इस वीडियो लेक्चर के जस्ट बाद आपको पोस्ट भी करता हूँ, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप मुझे उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट होने से रिगार्डिंग टू द वीडियो लेक्चर, रिगार्डिंग टू द असाइनमेंट जो आपको मिलेगा, तो वो आप मुझसे मेरे पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपके पास सब लोगों के पास ही होगा, ग्रुप में भी एडेड है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप मुझे मेरा नंबर पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों के पास आर डी शर्मा बुक है तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और एनसीईआरटी भी आपको कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट किया है जैसे मैंने चैप्टर, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 11th का है, वहाँ से आप क्वेश्चंस करिए। कोई डाउट होने से आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।